Hello my dear students, this is Swati Chawla. I welcome all of you on my YouTube channel and the series of class 11th and 12th Computer Science with Python. In this video, we will start our chapter using Python libraries. In this video, we will study the introduction of Python libraries, what is the relationship between Python modules, package and library. बहुत ही बड़ी एक्सप्लेनेशन आपको दी जाएगी so that आपके concepts एकदम clear हो जाए. So without wasting our time, let's start our today's video. But before starting this video, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो what are you waiting for? फटाफट से चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, so that इसी तरह से आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे. So now let's start our today's video. Let's start with the introduction first. What are Python libraries? Now, before discussing this term Python libraries, इससे पहले आपने functions वाला chapter बहुत अच्छे से किया. What is the main purpose of creating functions? The reason is very obvious कि whenever our program becomes complex, we generally used to divide our programs into functions. तो काफी small functions बना देते हैं so that whenever we need those functions, we just have to call it in our program. So a large and complex program should be divided into functions. अब जब वो भी मेरे पास complex हो जाए, काफी सारे functions हो जाए, तो what else we can do? We can create a library or package. As we write more and more functions in a program, we should consider organizing the functions by storing them in a modules. Let's say for example, I'm developing a software of, let's suppose, school management system. अब वन ऑप्शन इज दैट कि मैं सारा का सारा सॉफ्टवेयर डेवलप तो कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस. सारे फंक्शंस बनाए, उसको मैं अपने प्रोग्राम में कॉल भी कर रही हूँ. अब उससे होगा क्या, एक ही मेरे पास .py फाइल है, इसी में आप फंक्शंस डिफाइन कर रहे हो और इसी में आप उसको कॉल कर रहे हो. अब अगर स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम इतना बड़ा लेवल पर वो प्रोजेक्ट है तो इट विल बिकम वेरी कम्बरसम और कॉम्प्लेक्स कि मैं वो सारे फंक्शंस उसी में लिख दूं, राइट, और फिर वहीं पर मैं उसको कॉल भी कर रही हूँ. तो what else we can do? We will create a separate Python files. ठीक है, Python files simply modules हैं, ये भी हम आगे डिस्कस भी करेंगे. डिफरेंट मॉड्यूल्स हम लोग बना देंगे. लेट सपोज स्टाफ से रिलेटेड सारा का सारा फंक्शंस एक उसमें आ जाएगा फाइल में. लेट सपोज ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सारा एक फाइल में आ जाएगा. एकेडमिक्स से रिलेटेड सारा एक फाइल में आ जाएगा. तो मैंने उनको डिफरेंट उसमें फाइल्स में कैटेगराइज कर दिया. अब मेरा टास्क जो और भी सिंपलर और इजियर हो जाएगा. As we write more and more functions in a program, we should consider organizing these functions by storing them in a modules. Instead of writing all the functions in a single file, what we will do? We will organize the functions in a separate files, or these are known as your modules. Now your Python program is made using three different components: library or package, modules, and then functions. Now see this, a very important a relationship between module, package and library, right? As per my experience, इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि मॉड्यूल क्या है, पैकेज क्या है, लाइब्रेरी क्या है. ठीक है, इसको बिल्कुल अच्छे से समझेंगे सो दैट आपका कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, राइट? नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूल. अ मॉड्यूल इज अ फाइल containing Python definition, functions, variable, classes and statements. The extension of this file is .py file. जो भी आपकी .py फाइल होएगी पाइथन की फाइल, that is known as module, right? अब मेरे माइंड में क्या क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसे तुम पाइथन में कितनी सारी फाइल्स बनाते हैं, क्या वो सारी ही फाइल्स पाइथन मॉड्यूल कहलाएंगी? जस्ट अ मिनट, आगे आने वाली स्लाइड में हम ये भी डिस्कस करेंगे, राइट? सो अब मॉड्यूल आपको पता लग गया क्या होता है. सिंपल एक पाइथन की फाइल होती है. अब पाइथन की फाइल है तो दैट मीन्स द एक्सटेंशन ऑफ दैट फाइल विल बी .py. एंड व्हाट माय मॉड्यूल कैन कंटेन? इट कैन कंटेन फंक्शन डेफिनेशन, वेरिएबल्स, क्लासेस, स्टेटमेंट्स, एनीथिंग व्हिच यू वांट, राइट? नेक्स्ट टर्म मेरे पास आती है पाइथन पैकेज. अब पाइथन पैकेज इज अ डायरेक्टरी. डायरेक्टरी सिंपली मीन्स योर फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स. मॉड्यूल्स आर योर फाइल्स. जैसे आपका सिंपल, अगर मैं नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, कलेक्शन ऑफ फाइल्स किसमें होती है? फोल्डर में होती है.
सो सिमिलरली कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स इज नोन एज योर पैकेज, और पैकेज आपका क्या होता है, फोल्डर ही होता है, राइट। अ पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड मॉड्यूल्स दैट वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड सर्टेन फंक्शनैलिटी। दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेटेड मॉड्यूल्स, जो हमारे रिलेटेड मॉड्यूल्स हैं उसको ही हम ग्रुप करते हैं पैकेज के अंदर। And further, the collection of packages is known as your library. That means top level पर आपकी क्या होगी, library, then package and then modules. Generally, there is no difference between Python package and Python libraries. But अगर हम technically बात करें तो there is a difference. Modules, collection of modules is known as package, and collection of package is known as your library. Right? Now let's see this diagrammatically. Now let's say, for example, here we have created our one Python file, right? .py file. This is also my second .py file. This is also my .py file. This is also my .py file. Let's suppose ये मेरे कुछ 6 .py files हैं, right? अब जो ये आपकी .py files हैं बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे? These are my modules. जो भी हमारी .py फाइल्स हैं, these are your modules. Now collection of these modules, right? Let's suppose मेरे पास एक पैकेज है, this one, right? एक मेरे पास सेकेंड पैकेज है, in that we are having 3 modules. This is my package 1 and this is my package 2, right? Now what is my package? A package is a collection of related modules. अब ये दोनों modules आपस में related थे, तो मैंने इनको combine करके एक package बना दिया. Similarly, these 3 modules ये भी related थे, इसको भी मैंने combine करके एक package में बना दिया. So at my second level, it is the package, right? Now what is library? Collection of packages is known as your library. So at the top we are having library, then package and then modules. So इस diagram से I think it will be clear to you. Library आपकी top level पर होगी. Library is simply a collection of packages. And package, these are the collection of your Python files, or you can say these are the collection of your modules, right? Now see बच्चों, next point, Python script versus module. अब Python script क्या होता है? जो भी आपकी .py files होती हैं. अब तक हमने क्या पढ़ा कि मॉड्यूल इज योर पाइथन फाइल्स, जो भी .py फाइल है वो आपका मॉड्यूल होगा, राइट? ये भी तक हमने डेफिनेशन पढ़ी. बट अब मेरे माइंड में क्या है कि हम तो पाइथन में कितने सारे प्रोग्राम्स बनाते हैं, कितना कुछ एग्जीक्यूट करते हैं, वो सारी भी मेरी .py फाइल्स होती हैं, राइट? उसको हम पाइथन स्क्रिप्ट बोलते हैं. अब उन पाइथन फाइल्स में और मेरे मॉड्यूल में क्या डिफरेंस रह गया? नाउ सी दिस, व्हाट इज पाइथन स्क्रिप्ट? अ स्क्रिप्ट इज अ पाइथन फाइल दैट्स इंटेंडेड टू बी रन डायरेक्टली. When you run it, it should do something. जो भी आप पाइथन में प्रोग्राम्स बनाते हो, आपके पाइथन स्क्रिप्ट होती है, पाइथन की फाइल्स होती हैं जिसमें आप कुछ एग्जीक्यूट करो, कोई फंक्शंस बनाया, अब मैं उस फंक्शन को कॉल भी कर रही हूँ उसी पाइथन स्क्रिप्ट में, वो आपका क्या होगा? पाइथन स्क्रिप्ट. Whereas in module, a module is a Python file that's intended to be imported into scripts or other modules. तो modules मेरे क्या होते हैं? जो मैंने वो modules बनाए हैं, इनको मैं अपने स्क्रिप्ट में, मींस अपने पाइथन के फाइल में इंपोर्ट करूंगी, सो दैट मेरे वो फंक्शंस क्या हो जाए? एग्जीक्यूट हो जाए. It often defines members like classes, functions and variables intended to be used in other files that imported. जो उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, उस फंक्शंस को वो कॉल करेगा. Now see this example. अब ये दोनों मेरी .py फाइल है, राइट? अब जो आपके माइंड में कंफ्यूजन था ना कि क्या सारे की सारी पाइथन फाइल्स मॉड्यूल होती हैं? नो, राइट? बस सिंपल आप यूं कह सकते हो कि मॉड्यूल की एक्सटेंशन भी .py है, वो भी मेरी पाइथन फाइल है, और जो आप पाइथन में प्रोग्राम्स बनाते हो, पाइथन स्क्रिप्ट बनाते हो, उनकी एक्सटेंशन भी .py फाइल है. बट देयर इज अ डिफरेंस बच्चों, राइट? नाउ सी दिस फर्स्ट फाइल, इसका नेम आई हैव रिटन add.py. In this we have defined a function add. It is adding 2 values and returning the that addition amount, जो भी आपका ऐड होकर के आएगा. इसी प्रोग्राम में हम लोग क्या करें? We are calling the function and printing the result as well. That means this is my Python script. I have defined a function, I can define the variables
and in this script only, in this program only, we can call these functions, we can access those variables also. Now why it is different from Python module? In Python module, we just define the function. There is only a function definition part. Function call part is not there in module. ठीक है, that is a separate thing कि अगर मेरा फंक्शन दूसरे फंक्शन को ही कॉल कर रहा है, बट जो हमारा एक्चुअल फंक्शन कॉल स्टेटमेंट होंगी वो हम कहां पर लिखेंगे? उस स्क्रिप्ट में जो इस मॉड्यूल को क्या करेगा? इंपोर्ट करेगा, राइट? सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पाइथन स्क्रिप्ट एंड पाइथन मॉड्यूल. नाउ सी बच्चों, एज यू नो कि इन पाइथन आल्सो वी आर हैविंग काफी सारे पैकेजेस हैं, लाइब्रेरीज हैं, मॉड्यूल्स भी हैं. हाउ टू सी दैट? बिकॉज आई नो पाइथन इज माई ओपन सोर्स लैंग्वेज, राइट? तो इसका जो भी कोड है दैट इज अवेलेबल टू अस फ्री ऑफ कॉस्ट. वी कैन डू मॉडिफिकेशंस इन दैट आल्सो, राइट? So let's check it out now. In our next video also we will discuss how to create the modules also. Now see, this is the default path. आप ओपन करोगे जहां पर आपका पाइथन इंस्टॉल है, राइट? अब ये पाथ कहां से आएगा? Now let's suppose हमने यहाँ पर पाइथन ओपन करा. Now see this, you have to click on file menu, then open option. तो यहाँ पर आपका टॉप पर पाइथन का पाथ आएगा बेटा. यू हैव टू कॉपी दिस पाथ फ्रॉम हियर एंड इन द एड्रेस बार जस्ट पेस्ट दिस पाथ एंड देन प्रेस एंटर की. तो ये आपका ओपन होएगा, राइट? अब देखो यहाँ पर ये काफी सारी .py फाइल्स हैं, पर दीज आर नॉट मॉड्यूल्स, राइट? अब अगर मुझे मॉड्यूल्स फाइंड आउट करने हो, सी दिस फोल्डर LIBS. इसमें हमारी कुछ लाइब्रेरीज हैं, किंटर लाइब्रेरी है इस तरीके से. और LIB फोल्डर की अगर मैं बात करूं, दिस फोल्डर LIB, यू हैव टू ओपन दिस फोल्डर. अब इसमें मेरे पास जो भी पाइथन के इनबिल्ट मॉड्यूल्स हैं वो सारे के सारे, इफ यू वांट टू चेक इट आउट. नाउ लेट्स सपोज मेरे पास स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल है, राइट? तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे स्टैटिस्टिक्स. दिस इज माय स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल. तो इफ यू वांट टू ओपन, जस्ट राइट क्लिक, एडिट विद IDLE. अब ये मेरा जो स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल है उसकी जो सोर्स कोड है वो ओपन हो चुका है, राइट? अब इसमें काफी सारे फंक्शंस हैं, बट हमारे कोर्स में हमने कितने पढ़े? ओनली 3, मीन, मीडियन एंड मोड. इसको कंट्रोल F करके हम फाइंड कर सकते हैं, राइट? कि हमारा जो मीन फंक्शन है वो एक्चुअल में कहां पर डिफाइन है और उसका सोर्स कोड क्या लिखा हुआ है. दिस इज द मीन फंक्शन जो डिफाइन है आपके स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल में, राइट? अब ये सारी इसमें डिस्क्रिप्शन दे रखी है, प्लस कैलकुलेशन दिखा रखी है, हाउ इट इज कैलकुलेटिंग द मीन ऑफ वैल्यूज. सिमिलरली वी आर हैविंग पिकल मॉड्यूल आल्सो. पिकल मॉड्यूल भी है, तो इसका सोर्स कोड भी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है? इसमें से आपने डंप, लोड फंक्शंस, ये अगर आपने फाइल हैंडलिंग पढ़ लिया है तो यू विल बी फेमिलियर विद दैट. अदरवाइज आप पढ़ोगे तो वहां पर हमारा लोड, डंप, ये फंक्शंस आते हैं, राइट? तो उनकी डेफिनेशन पार्ट भी यहाँ पर डिफाइन है. अब पाइथन, इसी का यही मतलब है कि जो ओपन सोर्स लैंग्वेज है, जो फंक्शंस आप कॉल कर रहे हो ये यहाँ पर डिफाइन कर रखे हैं, उसका सोर्स कोड आपको अवेलेबल है, राइट? सिमिलरली यू कैन गो फॉर रैंडम मॉड्यूल आल्सो. ये रैंडम मॉड्यूल भी मेरे पास है, ये इसका सोर्स कोड अवेलेबल है, राइट? इसमें आपने जो फंक्शंस पढ़ेंगे, यू कैन प्रेस कंट्रोल F और यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो. लेट्स सपोज आई एम राइटिंग रैंड इंट, तो यहाँ पर जो मेरा रैंड इंट फंक्शन डिफाइन कर रखा है वो चीज आ गई, राइट? कि रैंड इंट फंक्शन जो है ये आपका किस तरीके से रैंडमली इंटीजर वैल्यूज जनरेट करके देता है, राइट? अब इसमें एक चीज देखो, द वेरी फेमस मॉड्यूल दैट इज मैथ मॉड्यूल, वो मुझे नहीं दिख रहा है इसमें. यहाँ पर M अगर मैं प्रेस करूं, दीज आर अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सॉर्ट बाय, इसको मैंने नेम कर रखा है, राइट? तो दैट मीन्स M की अगर मैं बात करूं तो मेल बॉक्स है, मेल भी सारे हैं, मैथ मॉड्यूल यहाँ पर मेरे को नहीं दिख रहा है. इसका रीजन देखो बच्चों क्या है. अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इम्पोर्ट रैंडम, राइट? और मैं हेल्प लिख रही हूँ, हेल्प फंक्शन क्या करेगा, इस मॉड्यूल की सारी डिटेल्स मुझे दे देगा. अब हेल्प ऑन मॉड्यूल रैंडम, रैंडम वेरिएबल जनरेटर्स, ये सारी की सारी डिटेल आ गई मेरे पास रैंडम मॉड्यूल की, राइट? बट अगर यही डिटेल में चेक करना चाहूँ अपने मैथ मॉड्यूल की, तो देखो मेरे पास क्या रिजल्ट आता है, इंपोर्ट मैथ एंड देन हेल्प मैथ, राइट? अब फर्स्ट स्टेटमेंट, इसके डिस्क्रिप्शन में देखो क्या लिखा हुआ बच्चों,
This module provides access to the mathematical functions defined by the C standard. Those who have heard about C language. C language मेरी open source language नहीं है, right? But Python open source language है. तो Python ने क्या कर रखा है, जो इसके मैथ मॉड्यूल के फंक्शंस हैं वो उसके जो C स्टैंडर्ड में वहां से पिक कर रखे, राइट? सो इसलिए जो है, अब C मेरी ओपन सोर्स लैंग्वेज नहीं है बट पाइथन ओपन सोर्स लैंग्वेज है. अब पाइथन ने जो मैथ मॉड्यूल के जितने मैथमेटिकल फंक्शंस हैं वो कहां से लिए, जो डिफाइंड बाय C स्टैंडर्ड है. तो ऑब्वियसली माय पाइथन कैन नॉट शो हियर माय मैथ मॉड्यूल. दिस इज द रीजन कि आपको काफी सारे मॉड्यूल्स यहाँ पर विजिबल हैं एक्सेप्ट द मैथ मॉड्यूल, राइट? अब बात आती है बच्चों पैकेजेस और लाइब्रेरीज की. अगर मैं LIB फोल्डर की बात करूं तो यहाँ पर मुझे कुछ फोल्डर्स भी गिवन है, जो नीचे सारी की सारी .py फाइल्स हैं. दीज आर योर मॉड्यूल्स. अब मेरे पास देखो पैकेज भी फोल्डर की फॉर्म में होती है, लाइब्रेरी भी फोल्डर्स की फॉर्म में होती है, राइट? अब अगर मैं इसको ओपन करूं, लेट्स सपोज आई एम ओपनिंग दिस साइट पैकेजेस. यहाँ पे यूजुअली वो पैकेजेस होंगे जो आपने इंस्टॉल किए. लेट्स सपोज आई हैव इंस्टॉल्ड MySQL कनेक्टर इंस्टॉल कर रखा है. अब इस फोल्डर जब ओपन करेंगे, नाउ सी दिस, इसके अंदर फर्दर मेरे पास एक और फोल्डर है. तो दैट मीन्स MySQL इज नॉट अ पैकेज, इट इज अ लाइब्रेरी. अब इसके अंदर हमने कनेक्टर पर क्लिक करा, ठीक है. अब ये मेरे पास इसके अंदर सारे के सारे के आगे बच्चा मॉड्यूल्स. तो दैट मीन्स कनेक्टेड मेरा क्या हो गया, पैकेज हो गया. अगर फोल्डर के अंदर वापस से सब फोल्डर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल दिस URLib, दिस इज माई पैकेज. तो व्हेन आई ओपन दिस फोल्डर, अब मेरे पास ओनली .py फाइल्स हैं, कोई और फोल्डर नहीं है. तो दैट मीन्स URLib इज माई पैकेज, राइट? अब अगर आप किसी फोल्डर को ओपन करके दोबारा उसके अंदर फर्दर फोल्डर्स हो, अब दिस HTTP, इसके अंदर फर्दर कोई फोल्डर नहीं है, सिर्फ पाइथन फाइल्स हैं. दैट मीन्स ये आपके सारे क्या हो गए, मॉड्यूल्स. और दिस HTTP इज माई पैकेज, राइट? नाउ लेट्स ट्राई ओपनिंग अनदर वन. सपोज किंटर टेस्ट, इसके अंदर टेस्ट नेम से मेरे पास क्या है, फर्दर पैकेजेस हैं, राइट? सो आई होप आपको लाइब्रेरी, पैकेज, मॉड्यूल, ये सब डिफरेंस रिलेशनशिप एकदम क्लियर हो गया होगा, राइट? नाउ लेट्स मूव फर्दर. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स? The first advantage is putting code in modules is useful because of the ability to import the module functionality. It is beneficial to define the functions that put in the modules so that we can import these modules and the functions defined in these modules whenever required. और एक बार ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम उसको एक ही स्क्रिप्ट में इंपोर्ट कर सकते हैं. नो, एक बार मॉड्यूल बना करके डिफाइन करके रख दिया, वी कैन इंपोर्ट द फंक्शंस ऑफ दोस मॉड्यूल्स एज मेनी टाइम्स एज वी वांट. A module can be used in some other Python code, hence it provides the facility of reusability. हम अपने कोड को, जो हमने पाइथन का मॉड्यूल बनाया है, that we can reuse in another program source. A module allows us to logically organize our Python code. मॉड्यूल की हेल्प से क्या होगा, जो हमारा पाइथन का कोड है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो जाएगा. सारे के सारे रिलेटेड मॉड्यूल्स मेरे एक पैकेज के अंदर होंगे. And similar types of attributes can be placed in a single module. Similar types of attributes means अगर एक मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल में उसी से रिलेटेड फंक्शंस, उसी से रिलेटेड वेरिएबल्स, उसी से रिलेटेड क्लासेस होंगे. और similar type of modules को we can group them into a package. It reduces the complexity of a program to a large extent. Obviously ये पॉइंट हमने बिल्कुल बिगिनिंग में भी डिस्कस किया है कि जब हमारे फंक्शंस के थ्रू काम करना भी काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो वी जनरली यूज टू डू विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूल्स. नाउ देयर आर मल्टीपल मेथड्स टू इंपोर्ट द मॉड्यूल्स इन अ प्रोग्राम. फर्स्ट वन इज यूजिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड वन इज यूजिंग फ्रॉम स्टेटमेंट. अब फर्स्ट वन है यूजिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट. द सिंटैक्स इज इंपोर्ट एंड देन मॉड्यूल नेम. हियर यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द मॉड्यूल व्हिच यू वांट टू इंपोर्ट. And if you want to import multiple modules in your program, you just have to write name of modules and in between comma. So import math, comma, random, comma, इस तरीके से. To access a particular method from any module, particular method भी, or even you can say variables or constants. So we have to write module name dot function name. Now let's suppose for example, यहाँ पर हमने math module import कर रखा है. इसको let me close this. Right. अब इसमें हमने लिखा import math.
अब एंटर प्रेस कर दिया. नाउ आई हैव टू राइट math.sqrt, लेट्स सपोज 89. तो इट विल रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर 89. And now if I want to import two modules simultaneously, what I have to write? Import random, statistics. तो अब इससे क्या होगा, दोनों मॉड्यूल्स मेरे साथ में ही इंपोर्ट हो गए. सो आई कैन राइट random.random फंक्शन. ये आपको पता है क्या काम करेगा. इट विल जनरेट अ रैंडम वैल्यू between 0 to 1, including 0 and excluding 1, right? Similarly, you can use statistics also. हम कोई भी फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, वेरिएबल या कांस्टेंट, जैसे इसमें पाई डिफाइन है मैथ मॉड्यूल में, इस तरीके से, राइट? नाउ सेकेंड मेथड. अब इससे इंपोर्ट स्टेटमेंट से होता क्या है, उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जितने भी कांस्टेंट्स, जितने भी फंक्शंस, जितने भी क्लासेस हैं, वो सारी की सारी क्या हो जाती है, इंपोर्ट हो जाती है. Now what if we want to import particular functions, not all the functions? So for that we are having from statement. It is used to access specific attributes from a module, like from math import POW. So it will import that particular POW function from math module, not all the functions. And if we want to import multiple functions, so we have to write function name 1, function name 2, इस तरीके से, और आगे from module name. And now the syntax is only we have to call the function name, क्योंकि अब वो सेम ही नेम स्पेस में होंगे, जैसे आप नॉर्मल फंक्शंस कॉल करते हो, सिमिलरली, राइट? अब अगर मैं अपनी शेल को यहां से रीस्टार्ट कर दूं, ठीक है, अब हमने शेल को रीस्टार्ट कर दिया, दैट मीन्स अब वो मैथ मॉड्यूल सारे हमने इंपोर्ट किए थे वो अभी नहीं है, राइट? अगर मैं यहाँ पर लिखूं तब वो एरर शो करेगा, क्योंकि मैंने अपनी शेल को रीस्टार्ट कर दिया, राइट? नाउ लेट्स सपोज हियर आई एम राइटिंग फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQrt. Now what I have done, I have only imported square root function from math module. To find the square root, now I just have to call this function without the name of the module, right? अब अगर मैं कोई और फंक्शन को कॉल करूंगी, लेट्स सपोज साइन फंक्शन को कॉल करते हैं, तो देन इट विल जनरेट द एरर, बिकॉज मैथ मॉड्यूल से हमने सारे के सारे फंक्शंस को कॉल नहीं किया है. एंड थर्ड मेथड इज यू कैन राइट फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार. अब स्टार का मतलब क्या है कि मैथ मॉड्यूल के सारे फंक्शंस इंपोर्ट हो गए, राइट? सो नाउ आई कैन सिंपली राइट SQrt, लेट्स सपोज दिस, और यू कैन से साइन, इसमें हमने कोई वैल्यू लिख दी. अब ये करेक्ट वर्क करेगा, राइट? अब मेरे माइंड में बच्चों क्या क्वेश्चन आता है कि इसमें क्या डिफरेंस हो गया फिर, इंपोर्ट मैथ एंड फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार, राइट? इन दोनों चीज से हो तो क्या ही रहा है, मैथ मॉड्यूल के ही सारे फंक्शंस, कांस्टेंट, सब कुछ हम लोग अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर रहे हैं. एक डिफरेंस तो रहेगा बेटा, व्हेन यू कॉल द फंक्शन और व्हेन यू एक्सेस द कांस्टेंट्स. इफ यू हैव इंपोर्टेड द मॉड्यूल यूजिंग दिस first statement, so you have to write the module name dot function name, and in this you have to write the name of the function only. Why the name of function only? क्योंकि इसको सेम नेम स्पेस में ही देगा, राइट? आगे नेम स्पेस का टॉपिक भी हम पढ़ेंगे. अभी के लिए आप सिर्फ इतना कर सकते हो, जैसे हम अपना नॉर्मल पाइथन स्क्रिप्ट प्रोग्राम बनाते हैं, फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो उसके अंदर जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो सिंपल फंक्शन कॉल स्टेटमेंट इसी तरीके से लिखते हैं. तो सेम वी हैव टू डू व्हेन वी आर इंपोर्टिंग द स्टेटमेंट यूजिंग from keyword, right? Here import is also a keyword and from is also a keyword. If you want to check the list of keywords, so what you can do, import keyword, and here you can type keyword dot kw list. तो यहाँ पर आपकी सारी की सारी keywords जितने भी हैं मेरे पास, उनकी क्या आ जाएगी बच्चों, लिस्ट आ जाएगी, right? अब you can find it here, import is also my keyword, from is also my keyword, right? यहाँ पर आप सारे लिस्ट देख सकते हो कि मेरे पास टोटल कितने कीवर्ड्स हैं. अब ये आंसर लिस्ट की फॉर्म में आया है. विद द हेल्प ऑफ लेंथ फंक्शन यू कैन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स आल्सो, राइट? नाउ नेक्स्ट इज मॉड्यूल अलाइसिंग. अलाइसिंग इज टू गिव एन अल्टरनेट नेम टू एनीथिंग. अब स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल काफी बड़ा नेम है और आई वांट टू बी वेरी लेजी कि मुझे बार-बार स्टेटिस्टिक्स नहीं लिखना है, तो what else we can do? We can use the alias name. Renaming the module at the time of import using as keyword, right? And what will be the syntax now? Import module name as, and then here you have to write the name of the alias, right? So let's suppose here I'm writing import statistics
as s, let's suppose, right? Now I can write s dot mean, this one. It is executing perfectly fine. I don't want the statistics to be right again and again, so I can use this module aliasing, that is s, right? So in this way we can do module aliasing also. So I hope with this concept, जितने भी concepts इस वीडियो में explain किए हैं, that are crystal clear now. आपके जो भी doubts थे वो आप I think solve हो चुके होंगे. If still you are having any doubt, you can write it in the comment section. और if you like my video, बच्चों do press the like button. कि काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वीडियो देखकर चले जाते हैं, ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं. ठीक है, आई एम नॉट फोर्सिंग, बट हाँ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना. एंड डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो. In our next video, we will discuss how to create or define our own modules and packages in Python. Till then, keep watching, keep studying.